Hello students, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Now in the last lecture we started with lesson number 3, the earth and its living world, right? And then here also we studied about the three spheres of the earth, which includes hydrosphere, lithosphere and atmosphere. Okay, and the biosphere, it is present in all the three spheres. Bio means living. Okay, so the living things are present in all the three spheres. ठीक है, अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, they are present in air, in water and in land also, right? So that is why we are calling that biosphere. It is present in all the three spheres of the earth. Okay, now then we studied about some of the questions and we discussed about it, and we saw that sun is the main cause जिसके वजह से जो भी नेचुरल प्रोसेसेस हो रही है अर्थ के ऊपर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सन. एंड वी नो कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, राइट? वी स्टडीड दैट इन द लास्ट लेक्चर, राइट? Now see, then we studied about lithosphere, which means land, है ना? And hydrosphere मतलब hydrosphere means water. And we came to know that the hydrosphere is 2/3 of the earth. तो ये पूरा earth है, उसके ऊपर 2/3 portion जो है it is covered with water. Okay, and 1/3 portion it is land, right? Then we studied about various landforms and we studied about the mountains, valleys, hillocks, plain, river, valley, island, seashore, right? So we saw various types of landforms in the picture, and then we studied about ocean, sea, and we saw that the ocean water is salty and we cannot consume salty water. Okay, then we studied about the oceans. There are 5 oceans, right? One is Atlantic Ocean, second one is Pacific Ocean, third one is Arctic Ocean, fourth one is Southern Ocean, and fifth one is Indian Ocean, right? And then we studied about the continents, right? There are 7 continents. They are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Antarctica and Australia. Okay, so these are the 7 continents, and I told you that this sentence and this 5 ocean wala sentence, they both these sentences, they are important. One is this and one is this sentence. ठीक है? एंड ऑल्सो यू शुड नो कि एशिया जो है ना वो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एंड ऑस्ट्रेलिया जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. एंड यू शुड नो देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस. ठीक है? देन वी स्टडीड अबाउट द सरफेस वाटर एंड वी स्टडीड अबाउट lakes, right? And then we studied about what are icebergs and what are groundwater, right? So today we will be starting with the atmosphere, which includes the air, है ना? atmosphere के अंदर क्या आता है? air, right? So see, the envelope of the earth, of the air around the earth is called as atmosphere. अब आप atmosphere को how you will define atmosphere? तो see, suppose this is the earth. अब अर्थ के पास जो भी सरफेस है या जो भी एनवेलप सराउंडिंग है अर्थ के आसपास, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फियर. ओके, सो एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, आई हैव थॉट यू इन द लास्ट लेक्चर कि जब आप माउंटेन के ऊपर जाओगे, जितना ऊंचा आप माउंटेन क्लाइम करोगे, वहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी. ओके, सो यहाँ पे वही बोला है सेंटेंस में कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर ऊपर जाएंगे, व्हाट विल हैपन, जो एयर है एटमॉस्फेयर के अंदर, दैट विल बिकम रेयरर. ओके, देन वी सॉ दैट द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस
which includes nitrogen, oxygen, water vapor and carbon dioxide. And these gases, they are important to us, okay? And there are various other gases. अभी hydrogen हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस को छोड़ के भी दूसरे टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, बट दोज गैसेस दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है? बट जो गैसेस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं दैट वो प्रेजेंट होते हैं इन लार्ज क्वांटिटी, ओके? अब एटमॉस्फेयर के लेयर कौन से हैं? यू शुड नो दैट. फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, second is stratosphere, third is mesosphere, fourth is ionosphere, and the last one is exosphere, right? We have studied this in the last lecture also. So this is also an important sentence, okay? Now ट्रोपोस्फियर को आप कैसे बताओगे कि ट्रोपोस्फियर क्या होता है? तो अर्थ का एक ऐसा लेयर, अर्थ सरफेस के यहाँ का एक ऐसा लेयर जो 13 किलोमीटर के हाइट पे होगा या वो उससे एक्सटेंड करेगा, ठीक है? 13 किलोमीटर के ऊपर जो जाएगा उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, ओके? एंड जो ट्रोपोस्फियर के अंदर कंडीशंस होते हैं, दैट कंडीशन चेंजेस कंटिन्यूसली, एंड जब ये चेंज होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, दैट टाइम जो लिविंग वर्ल्ड होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, okay, either in a bad way or in a good way, ठीक है? Now see, these are the 5 layers. If you can see, this is the earth, atmosphere. I told you the surface which is present around the earth, that is called as atmosphere. So this is the earth which you can see, first part. Then यहाँ पे पहला layer is troposphere. तो जहाँ से एरोप्लेन जाता है ना, उस लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, ठीक है? फिर एक ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है. ये ओजोन लेयर का काम क्या है? अब सन जो है वो एक हार्मफुल रेडिएशन देती है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है. इट कैन कॉज कैंसर टू अस, ओके? तो वो हार्मफुल रेडिएशन को रोकने का काम कौन करेगा? दिस ओजोन लेयर. ये ओजोन लेयर क्या करता है? वो हार्मफुल यूवी रेस को अर्थ तक आने नहीं देता, ठीक है? सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर, and third one is mesosphere, fourth one is ionosphere, and fifth one is exosphere, ठीक है? Now see, the surface of the earth, it will get heated due to the heat it receives from the sun, right? sun जो है वो heat and light देता है हमें, तो जो अर्थ का सरफेस है वो भी गर्म हो जाएगा. why? because it is receiving the heat from the sun, right? hence जो भी अर्थ सरफेस के पास होगा दैट विल बी दी हॉटेस्ट, राइट? वो सबसे गर्म होगा. सो ट्रोपोस्फियर. नाउ सी, एज वी गो हायर इन द ट्रोपोस्फियर इट बिकम्स कूलर, ठीक है? जब आप ट्रोपोस्फियर के ऊपर जाओगे, अभी ट्रोपोस्फियर बिकॉज ये सन के पास ही होगा आसपास, इसलिए यहाँ पे वो गर्म होगा बहुत. बट व्हेन यू गो हायर फ्रॉम ट्रोपोस्फियर इट विल बिकम कूलर 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 कूलर, ओके? Almost all the water vapor in the atmosphere, they are contained in the troposphere itself. Water vapors कहाँ पे store होंगे? In the troposphere, ठीक है? That is why all weather related phenomena such as formation of cloud, rain, fog, wind and storm, it will all take place in this layer only, ठीक है? And जो air होता है high mountains पे, that is rare. Then the air which is near the earth surface, so earth के surface के पास जो air होता है that is present. but जब आप mountain पे देखोगे, as I told you, mountain पे oxygen level जो है वो कम होता है, ठीक है? so aeroplanes they fly in the higher part of the troposphere. there the air is very rare, okay? तो air is rare मतलब क्या? बहुत कम, ठीक है? therefore ऐसे arrangement बनाए जाते हैं कि पैसेंजर्स जो है उनको इनफ एयर मिले फॉर ब्रीदिंग, बिकॉज वी नीड एयर. एयर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड वी नीड ऑक्सीजन, राइट? तो ऐसे कंडीशंस बनाने पड़ते हैं कि जो कस्टमर्स होते हैं एरोप्लेन के अंदर, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको प्रॉपरली ऑक्सीजन मिले, ठीक है? नाउ सी,
Beyond the troposphere, up to a height of 50 km from the earth is the layer called as stratosphere. अब ट्रोपोस्फियर के 50 किलोमीटर ऊपर जाओगे आप तो कुछ कौन सा लेयर आएगा, स्ट्रेटोस्फियर. ठीक है. अब लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर में एक गैस भी प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज ओजोन गैस. राइट, दिस इज द स्ट्रेटोस्फियर विच इज 50 किलोमीटर्स फ्रॉम ट्रोपोस्फियर एंड बीच में एक गैस का लेयर आ रहा है विच इज कॉल्ड एज ओजोन लेयर. राइट. नाउ यूवी रेज आई टोल्ड यू, राइट. तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो आते हैं सन से वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. सो ये जो ओजोन लेयर है इट विल एब्जॉर्ब द यूवी रेज एंड विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस रेज बिकॉज दे आर हार्मफुल फॉर अस. ठीक है. Now see, a new word is used which is called as condensation. Now what do you mean by condensation? It is the process जहाँ पे जो water vapors होते हैं ना, I told you troposphere के पास water vapors present होते हैं. Where is the sentence? See, almost all the water vapor in the atmosphere is in the troposphere. So ये जो water vapor होते हैं that vapor will turn into water when it cools. Okay. एंड ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, व्हेन द वाटर वेपर विल टर्न टू वाटर एट दैट टाइम वी कॉल द प्रोसेस एज कंडेंसेशन प्रोसेस. ठीक है. नाउ सी, दिस इज द वाटर साइकिल. यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है. इसका मतलब जो वाटर ड्रॉपलेट है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर ऑन कूलिंग. ठीक है. नाउ सी, first we will see how does it rain and then I'll explain you the diagram. ठीक है. See, water on the earth it will evaporate continuously due to the heat of the sun. तो अभी suppose आप एक काम करना, एक ग्लास के अंदर पानी रखना. ओके. एंड जब सन होगा ना उस टाइम रखना एंड जस्ट मार्क कि आपने कौन से लेवल तक पानी रखा था. ओके. आफ्टर 2 to 3 hours यू विल नोटिस कि जो पानी का लेयर था वो नीचे आ गया. Understood what I am talking about? Suppose this is the glass you have kept. आपने यहाँ तक पानी भर दिया है and after 2 hours or 3 hours you will see ये जो water का level है it will come till here. Now what is the reason beside this? Because जो water है हमारे earth के ऊपर वो sun के heat की वजह से what happens, वो evaporate हो जाता है. ठीक है. एंड ये वाटर फिर पर्कुलेट करता है सॉइल में. व्हाट डज इट मीन सॉइल पर्कुलेट होना, सॉइल में सॉइल के साथ एक तरह से मिक्स हो जाता है एंड ऑल्सो इवेपोरेट्स ड्यू टू हीट एंड इट विल देन एंटर द एटमॉस्फियर. ठीक है. एंड जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो व्हाट विल हैपन, वो सॉइल से भी इवेपोरेट हो जाएगा एंड देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर. ठीक है. अब बिकॉज एयर और वाटर वेपर को जो आप कंपेयर करोगे तो वाटर वेपर जो है लाइटर होता है, मीन्स उसका ज़्यादा वज़न नहीं होता. ओके. सो वाटर वेपर इज़ लाइटर देन एयर एंड इट विल राइज अप इनटू द एटमॉस्फियर. इसलिए एयर को भी पीछे छोड़ के वाटर वेपर एटमॉस्फियर में चला जाता है. ठीक है. एंड जैसे ही वो ऊपर जाता है, आई टोल्ड यू कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होती है, ट्रोपोस्फियर के लेयर पे. एंड जैसे जैसे आप स्ट्रेटोस्फियर मीजोस्फियर के लेयर पे जाओगे वैसे वैसे कूल कंडीशन मिलेगी. राइट. सो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा इट कूल होगा एंड देन इट कंडेंसेस. कंडेंस होना मतलब क्या, द वाटर वेपर विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर. राइट. सी द प्रोसेस ऑफ वेपर टर्निंग इनटू वाटर. राइट. तो यहाँ पे वाटर क्या होगा, कंडेंस होगा एंड दे विल फॉर्म वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. ठीक है. अब ये जो ड्रॉपलेट्स होंगे वाटर के वो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे एंड लाइट होंगे एंड वो क्लाउड्स के आसपास वो वाटर वेपर घूम रहे होंगे. ठीक है. अब ये ड्रॉपलेट्स जो है वो एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे एंड व्हाट विल हैपन, दे विल फॉर्म अ बिगर ड्रॉप विच आर हैवी. तो ऐसे स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स एक साथ आएंगे एंड दे विल फॉर्म अ बिगर ड्रॉप. ठीक है. एंड देन दे कैन नॉट फ्लो. जब तक वो अकेले थे, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था किसी को, तब तक वो फ्लो कर रहे थे क्लाउड्स के पास. पर जब वो ज्वाइन कर लेते हैं ना तो दे कैन नॉट फ्लोट. एंड तब क्या होता है, सच ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल डाउन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन. ओके. तो डिड यू अंडरस्टूड कि पानी नीचे आता कहाँ से है.
वो हमारे लैंड से ही इवेपोरेट होता है, क्लाउड पे जाता है एंड क्लाउड से फिर से रेन होता है. ओके, अब सी रेन वाटर जो है वो कहाँ पे फ्लो करेगा, रील्स में, स्ट्रीम्स, रिवर्स, एंड देन फाइनली इट विल एंटर द सी. अब आपने देखा होगा कहीं पे स्नोफॉल होता है तो आइस जो होता है इन द स्नो कवर्ड रीजन दे विल मेल्ट ड्यू टू हिट, राइट. आइस कब मेल्ट होगा, जब आप उसको हिट दोगे तो वो जल्दी से इट विल मेल्ट, राइट. सो दैट आइस विल ऑल्सो फाइनली फ्लो इन टू द रिवर ओनली. ठीक है. सो दिस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड रेनफॉल दे गो इन अ कंटिन्यूस साइकिल. ये कभी स्टॉप नहीं होता, बिकॉज अगर ये स्टॉप हो गया तो व्हाट विल हैपन, रेनफॉल नहीं होगा, इवेपोरेशन प्रोसेस नहीं होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस नहीं होगा. फार्मर्स को एग्रीकल्चर ग्रो करने के लिए, फूड ग्रो करने के लिए दे विल नॉट गेट वाटर, वी विल नॉट गेट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वी विल नॉट गेट वाटर फॉर washing the clothes, we will not get water for anything, and water is life, right. So this process it goes in continuous cycle, and इस cycle को ही हम क्या बोलते हैं, water cycle in nature. Now let us see this with the picture. Now see, अब you can see यहाँ पे river water है, right, river water है. अब वो क्या होगा, वो पानी जो है ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा. ठीक है, ये सॉइल के साथ मिक्स हो गया पानी थोड़ा सा, अब ये मिट्टी जो है वो गिल्ली हो गई. ठीक है, अब जब सन आएगा तो व्हाट विल हैपन, द सॉइल विल गेट हीट एंड व्हाट विल हैपन, इवेपोरेशन प्रोसेस विल टेक प्लेस, जिसके वजह से सॉइल के पास जो भी वाटर कंटेंट था दैट विल गेट इवेपोरेटेड एंड दैट विल गो इनटू द क्लाउड्स. अब ये क्लाउड तक कैसे गया, बिकॉज जो वाटर है, वाटर वेपर है, उसका वज़न एयर से कम होता है एंड दैट इज़ द रीज़न इट विल क्विकली गो टू द क्लाउड एरिया. अब क्लाउड में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जब एक साथ आएंगे, एक साथ मिलेंगे, दे विल फॉर्म अ बिग ड्रॉपलेट, जिनका जो वज़न होगा वो ज़्यादा होगा एंड दैट इज़ द रीज़न दे विल फॉल ऑन द लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल. ओके, अंडरस्टूड द साइकिल हाउ इट गोज़ ऑन. सो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल. ठीक है. नाउ सी, कैन यू टेल मी, make as long a list as you can of all the living things you see in the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Okay, so try to do this activity and you will make an endless list and it will be a never ending list, because lithosphere, hydrosphere and atmosphere हर जगह living things अलग अलग varieties के, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग स्पीशीज़ के प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो सी देर आर इन्यूमरेबल मतलब आप उसको काउंट नहीं कर सकते, तो इन्यूमरेबल काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग दे आर प्रेजेंट ऑन अर्थ. ओके, एंड द वेरियस रीजन्स ऑफ द अर्थ दे विल डिफर इन मैनी वे. सम रीजन विल बी कवर्ड विथ आइस वाइल सम विल, एक्सपीरियंस करते हैं कि कहीं पे स्नोफॉल हो रहा है, कहीं पे रेनफॉल हो रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे विंटर सीजन चल रहा है, राइट. सो देयर इज़ अ डिफरेंस, राइट. एंड देयर आर माउंटेन्स इन सम प्लेसेस एंड प्लेन्स इन अदर्स. कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं, कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे माउंटेन ही नहीं होते, राइट. सो देयर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन विच वी सी ऑन अर्थ. ठीक है. नाउ सी, some places have a lot of rainfall while others are dry desert. Now if you talk about Mumbai and Rajasthan, तो राजस्थान में आपने देखा होगा सिर्फ सैंडी प्रेजेंट होता है, कैमल होते हैं वहाँ पे, राइट. तो वहाँ पे उन्हें अप्रोप्रिएट रेनफॉल नहीं मिलता एंड दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे आप ज़्यादा सैंड देख पाओगे एंड पीपल वहाँ पे ना पानी की बहुत ज़्यादा कमी है. ठीक है. एंड मुंबई आप देखोगे तो यहाँ पे ओवरफ्लो ही होता रहता है हमेशा. सो कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है एंड कहीं पे बारिश ही नहीं हो रही. देन यू कैन सी कि जो सम सॉल्टी सीज होते हैं, कहीं पे ओशंस होते हैं, या तो फिर कहीं पे फ्रेश वाटर लेक्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. एंड द ओशन इट इज़ शैलो नियर द कोस्ट बट अवे फ्रॉम द कोस्टल लाइन एंड द ओशन कैन बी सेवरल किलोमीटर्स डीप. ठीक है. तो ओशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है. ओके, नाउ सी,
we see a great variety in the living things that inhabit these different regions, है ना. अभी हमने देखा कि कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे स्नोफॉल है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे रेनफॉल है, कहीं पे रेनफॉल ही नहीं है. बट अकॉर्डिंग टू दिस रीजन वहाँ के एनिमल्स भी डिफर करते हैं, राइट. नाउ सी, द पोलार बेयर इज ओनली सीन इन द स्नो बाउंड पोलार रीजन. कैन यू सी पोलार बेयर योर? नहीं ना, बिकॉज यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता. तो जहाँ पे स्नोफॉल होता है, स्नो बाउंड रीजन्स होते हैं, वहाँ पे ही आप पोलार बेयर को दे सकते हो. सो दे आर अडेप्टेड टू दोज रीजन, वो यहाँ पे रह ही नहीं सकते, ठीक है. जो जेब्राज होते हैं दे आर फाउंड ओनली इन अफ्रीका एंड कंगारूज दे आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज दे हैव बीन वेल अडेप्टेड टू द रीजन. अगर आप उनको इंडिया में ला के रखोगे तो इंडिया का क्लाइमेट इज़ हॉट, वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है. सो दिस एनिमल्स दे आर नॉट फाउंड इन एनी अदर रीजन. एलिफेंट्स एंड लायंस दे आर फाउंड इन द रीजन्स ऑफ हॉट क्लाइमेट, राइट. यू कैन सी एलिफेंट इन इंडिया and mostly you can see elephants in Rajasthan because there the climate is very hot, ठीक है. Then plants also, they also differ different region and they show a great variety, right. You can find different types of plants in different regions. See, these are the different types of plants which you can see in different regions. And कभी कभी ऐसा भी होता है कि in specific region you cannot see those type of plant only. मतलब अभी समझो रोज़ प्लांट, तो कोई ऐसा रीजन भी होगा जहाँ पे रोज़ ग्रो ही नहीं करता, ठीक है. नाउ सी, दिस वैरायटी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोज डिफरेंट रीजन्स एंड मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, है ना. अलग अलग टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें अर्थ पे मिलते हैं अलग अलग जगह पर. अब कहाँ पे मिलते हैं आपको प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन द एयर, राइट. सो लिविंग थिंग दे एग्जिस्ट इन द लिथोस्फीयर विच मीन्स लैंड, हाइड्रोस्फीयर विच मीन्स वाटर एंड एटमॉस्फीयर विच मीन्स एयर. एंड दे ऑल्सो इंटरैक्ट विद द स्फीयर्स. ओके, ये सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर में, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं. And as I told you they constitute the biosphere, है ना. Biosphere किसको बोलते हैं हम लोग? living things. They are present on all the three spheres, right. Now always remember that all plants, animals and microorganisms, we all are dependent on one another, ठीक है. हमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर एंड अभी भी हमें सबकी ज़रूरत पड़ती है बिकॉज अगर कोई एक भी मिस होगा ना तो पूरा फूड साइकिल एंड फूड चेन जो है ना हमारा, वो ख़राब हो जाएगा. ओके, सो वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर. अब हमें पता है या नहीं पता कि हम कैसे डिपेंडेंट हैं, बट वी आर डिपेंडेंट. ओके, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्पीयर्स ऑफ द अर्थ. नाउ वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर. We are dependent on the spheres of the earth, which means lithosphere, hydrosphere and atmosphere. And the biosphere is where they take birth, live and then they die, right. Now what we have learned in this lesson, how can you define lithosphere? जो earth crust है and the small hard portion of the layer under it. तो अर्थ के अंडर जो एक हार्ड पोर्शन लेयर है विच इज़ कॉल्ड एज अर्थ क्रस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर. देन वी सॉ कि जो 1/3 एरिया है अर्थ का, इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय लैंड, वाइल 2/3 एरिया जो है वो वाटर से कवर्ड है, राइट. देन वी सॉ दैट द सरफेस वाटर, आइज ऑन द लैंड, ग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर, दे आर प्रेजेंट इन द एयर टुगेदर एंड दे फॉर्म द हाइड्रोस्फीयर, right, because they are water. The envelope of the air around the earth we call it as atmosphere, right. and हमने water cycle पढ़ा and we saw कि जो water cycle है it goes on continuously and that is the reason we get rainfall. Then we saw that one layer of gas is present in the stratosphere which is called as ozone gas, and that is important for us because it is preventing us from the
UV rays which are harmful for us, right? Then we saw कि जो living things होते हैं वो सारे 3 spheres को occupy करते हैं. 3 spheres कौन से हैं? Lithosphere, hydrosphere and atmosphere, right? Then we saw कि सारे living things हैं and जो भी उनके parts occupy करते हैं वो उन सारी चीज़ों को हम biosphere बोलते हैं, right? So I hope you are clear with all the terms, all the concepts we have covered in the lesson. So we are done with the lesson. Thank you everyone.